केजीएफ में क्या बोला था रॉकी भाई ने, ग्रीड इज गुड, ग्रीड इज प्रोग्रेसिव। बिग बॉस मटेरियल, बिग बॉस मटेरियल, गो बिग बॉस। लड़की को क्या लगता है, लड़का बोल रहा है किसी को बताना नहीं मतलब गड़बड़ है। इंटरनेट में कोई भूलता नहीं, वो बार बार याद करवाते हैं आपको। तो कोई लड़की तो व्हाट आर यू डूइंग, आई से पुट शुगर, यू डोंट पुट शुगर इन ग्रीन टी। रियली? हर बाप को पता होता है बेटी की औकात क्या होती है, डैड को पता है इसकी औकात नहीं, कुछ नहीं करेगा, बट ही वाज राइट। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सोशलाइज। मेरा नाम है सानिया और हर हफ्ते हम आपके पास लेकर आते हैं एक सोशल मीडिया स्टार। द स्टार दैट वी हैव टुडे, आई एम हिज फैन। ओके, आई वॉच हिज वीडियोस एवरी डे at 9 AM. Hi Nikhil, welcome to Socialize. Tell me, how are you doing? I'm doing great, superb. I have to ask you, how was the traffic? It was very bad, and I felt so ashamed that you reached before us. See, I'm a typical Mumbai guy, so I always take my scooter anywhere I go. Yeah. Okay, first of all, congratulations. Earlier, it doesn't really matter. You're married, you're doing well in your life, you bought a house, but you're always this kind of a casual boy. Once the baby comes out, all of a sudden this shower of responsibility happens, and then you're like, you need to automatically think about your life in a very different way, and your main priority becomes your baby. So every day, every now and then, my wife is like, no hug, no kiss, no good morning, no how are you, only looking at the baby. Like that day I came from a ride and I was like, okay, I'm missing my wife and all that, and the moment I saw the baby I was like, Arey, how are you? So it's changed, sometimes, usually every time I used to get up and call my mother and before sleeping. Nowadays I skip that. I don't skip it, I miss it, and I forget कि मैंने call किया था कि नहीं किया था. Mom is like, you're not calling her, mom, after the baby. हाँ अभी तो बच्चा हो गया है तो माँ को भूल जाएगा ना, ऐसा नहीं है mom. But the thing is, you need to take care of the baby so much, especially in the initial days. Like baby सो रही कि नहीं, baby ने खाया कि नहीं, वो रो किस ले रही है, diaper गंदा है कि नहीं. Usually fathers don't really think about that, but I'm a little obsessed with my child, so yeah, it has changed. I have to tell you, your mom is my favorite part of your vlogs. I think the way she scolds you, tells you things, it's just great. So please tell her I'm her biggest fan. I tell her, you should go to Big Boss. Big Boss material. Big Boss material. Go Big Boss. But I want to know that, does your life ekdam se change when you have a baby, or is it like a whole transition? नहीं, एकदम से change. सब बोलते हैं एक महीने का, फिर दूसरा महीना आता है, फिर तीसरा महीना, चौथा, you're just only thinking about the baby. So life changes. All of a sudden it changes. आप खुद का खाना पीना भूल जाते हो, आप अपनी नींद भूल जाते हो, आप अपना काम भूल जाते हो, आप कमिटमेंट्स भूल जाते हो, आप पति पत्नी एक दूसरे को भूल जाते हैं. That's very normal, natural. Yeah. तो ये हुआ काफी. But does that reflect on your content also? क्या आप content को भी भूल जाते हो, या is that like a part of your life that will always stick with you? See, content, मैं content और content जैसा बनाता ही नहीं. I was telling you before we started rolling the camera कि I used to do this before there was a YouTube, and video making was kind of my, call it hobby or passion. I love filming myself in front of the camera. So now when I film it, there is a start, there is an end. Beside that, whatever happens in between is like थोड़ा professionalism add करता हूँ मैं. Baby हुआ तो मैं this is even better. I will document my life as a new father. So it doesn't affect. Yes, what affects is that I cannot, when I'm tired, I was like, you know what, chuck it. I will skip a day. I will skip 2 days. I will not put a video. I will just sleep, or I will look after my baby. So जितना मैं फुर्ती से पहले ब्लॉग डालता था, अभी उतनी फुर्ती नहीं है. तो यार वो बोल सकते हो इफेक्ट हुआ है. But you started in 2013. So 14, 15 actually. 15. So has the way you make content also changed over the years? Yeah, of course. Because earlier it was new, something very new. Creating a video and watching a video is like getting into a relationship. So when you are new in a relationship, आप अपने पार्टनर का कुछ भी सुनोगे, बकबक सुनोगे, वो आपको अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, रात को फ़ोन कर रहा है, धीरे यार मैं सो रहा हूँ, यार मैं भाग जा दोस्तों का, तो कैसा थोड़ा डिस्टेंस होता है. इसका मतलब ये नहीं आप इंटरेस्टेड नहीं हो. सिमिलरली जब कंटेंट बनाते हो या कोई देखते हो कंटेंट, तो आपको वो नया चीज़ बहुत अच्छा लगता है. देन बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. अभी तो 15 सेकंड्स के वीडियोस बहुत चल रहे हैं, तो आप एक लिमिटेशन में आ जाते हो कि मुझे अगर वीडियो बनाना भी है तो कुछ चीज़ मुझे एडिट आउट करना है. पहले हम इतने एडिट्स पे ध्यान नहीं देते थे, बिकॉज लैपटॉप्स इतने अच्छे नहीं थे, इंटरनेट स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी. 720p में डाल दिया तो क्वालिटी इतना मैटर नहीं करता. तो अभी कैसा है ना, लोगों को थोड़ी चमक धमक चाहिए, थोड़ा अच्छा क्वालिटी चाहिए, थोड़ा अभी क्या सोशल में बातें चल रही हैं उसके बारे में डिस्कस करो. और आपने मूवी कैसे नहीं देखी, जो अभी मूवी आती है, अरे उसके बारे में बात करो.
तो थोड़ा बहुत जिसमें आप शायद इंटरेस्टेड नहीं हो वो भी 1-2 चीज़ ज़रा बोलनी पड़ती है। बट लाइक व्हेनेवर आई वॉच योर व्लॉग्स आई सी कि टीवी पे आपके खुद के व्लॉग नहीं चल रहे होते हैं, तो क्या आधे व्यूज आप ही बढ़ा रहे हो अपने? नहीं, टीवी मेरे ब्लॉग्स इसलिए चलते हैं बिकॉज मैं काफ़ी ऐसा नहीं, मैं काफ़ी मूवी का ट्रेलर डालता हूँ या कभी कुछ मेरा गेम हो गया उसका स्क्रीनशॉट डालता हूँ। मैं अपना व्लॉग इसलिए डालता हूँ बिकॉज व्हाट आई डू साइकोलॉजिकली इज आई एम ट्राइंग टू आई एम टेलिंग यू नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली प्रमोट द यूज ऑफ टेलीविजन फॉर वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज। सो इफ आई एम पुटिंग इन लाइक आप कोई बहुत बड़ी बिग बजट मूवी देखते हो तो आर्टिस्ट क्या बोलता है गाइस प्लीज़ थिएटर में जाके देखो, हमने बहुत मेहनत की है VFX में, साउंड में, आपको उस थिएटर में ही मज़ा आएगा। उस हिसाब से मैं वो कोशिश करता हूँ। हालांकि हम यूट्यूबर्स बोल नहीं पाते कि मैंने इतनी मेहनत की है, इतना महंगा कैमरा लेके, इतना 4 किलो सेटअप में लेके घूमता हूँ, 4K कंटेंट शूट करता हूँ, तो थोड़ा टीवी वगैरह स्विच हो जाओगे ना तो आप थोड़ा और एंजॉय करोगे। उससे हमारा भी फ़ायदा है कि वॉच टाइम बढ़ जाता है। फ़ोन पे लोग चेंज करते हैं, टीवी पे चेंज नहीं करते। Okay, I have to ask one question that all millennials would want to know. How to perfectly hide your relationship on Instagram? You've done it very well. इतने साल तक, of course people knew but you never accepted. But how did you do that? Was it difficult to, not put it out on social media? Yes and no, both. See, I've been to a relationship before, and I never wanted to make it public because relationship is something very private. It's very personal. आप जितना बताओगे probably you become little fake in your life. Happens with everybody. Happens with big actors also. कि अगर आप कैमरे के सामने एक चीज़ प्रिटेंड करोगे एंड आपका पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, you might not discuss about it because you are like कैमरे के सामने perfect दिखना है, right? So I was like, and Shanice she was different that time, and we wanted to understand each other. We found our love in traveling. Fell in love and we were like, you know what? I told her, let's not tell anybody. तो लड़की को क्या लगता है, लड़का बोल रहा है किसी को बताना नहीं मतलब गड़बड़ है, तो मैं कमिटमेंट नहीं करना है, तो ऐसा था ही नहीं. And she understood. I think she was very mature for her age. She still is. Now she is most mature than me. So अभी वो दबदबा चले गया मेरा. पहले दबदबा था, मैं बड़ा हूँ, मैच्योर हूँ, अभी वो ज़्यादा मैच्योर हो गई है. कि देख ये हमारा पर्सनल चीज़ है, हम इसको मेंटेन करते हैं. नहीं बताना वाज अ टास्क. लाइक आई हैव डन होल कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड. शी सिटिंग एट द बैक और उसके हल्के हल्के बाल दिखते थे. वो टाइम किसी ने नोटिस नहीं किया और कोई कमेंट भी करता था मैं डिलीट कर देता था कि आई डिडंट नेवर वांटेड एनीवन टू नो दैट शी सिटिंग एट द बैक. फॉर मेन रीजन इज ऑफिस मेरी मम्मी को नहीं बताया था मैंने. उनको एक्सप्लेनेशन दो. एंड शानिस ने अपने घर में नहीं बताया था, वो एक्सप्लेनेशन दो. तो ऐसे आपकी मम्मी देखती थी बाल किसके उड़ रहे हैं? नहीं, वो फोन पे कहाँ दिखता था. अच्छा. बट कुछ लोग होते हैं जो फ्रेम बाय फ्रेम देखते हैं और मैं वो चॉप ऑफ कर देता था. मैंने 1-2 गलतियाँ की हैं कि वो दिखता है, बट वो बहुत रेयर, हार्डली किसी ने नोटिस किया था. अभी बोलता हूँ तो लोग वापस जाके वीडियो देखते हैं, हाँ सच में बाल दिख रहा है, सच में जैकेट दिख रहा है, अच्छा अब समझ में आया ये फोटो किसने ली. इट वॉज डिफिकल्ट टू डू दैट, टू हाइड हर इन द फ्रेम. रिलेशनशिप हाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है. आप बोलो फ्रेंड है तो लोग बिलीव भी कर लेते, इतनी खूबसूरत लड़की इसके साथ क्या करेगी, होता है वो टाइम. तो एंड उसका एग्जाम चल रहे थे, कॉलेज का सीन था, शी वांटेड टू बी, वो उसका एक अलग एक्टिंग का फेस चल रहा था. सो आई वाज लाइक लेट्स नॉट डिस्कस इट. एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग वी डिड इन आवर लाइफ. उसके वजह से हम इतने पर्सनल और प्राइवेट थे अपने लाइफ में. वी यूज्ड टू स्पेंड सो मच ऑफ टाइम टुगेदर एंड हमको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं, हम रिलेशनशिप में हैं. वो प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया हमारा, तो बहुत अच्छी चीज़ थी. Is it like does it give you more freedom now कि now you can just put up posts of you and Shanice together, put love songs now? Is it easier? See, I am married. I'm married to her only, so it's obviously easier. I don't care. I never cared then. Okay, I cared about my mother, her mother and audience. कि मुझे नहीं चाहिए कि मैं बताऊँ कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, कल को ब्रेकअप होता है तो उसकी इंटरनेट में कोई भूलता नहीं, वो बार बार याद करवाते हैं आपको. So I don't want that to happen. Now आप याद करो और भी अच्छा हमारे लिए कि हम पहले से साथ थे and I never shared about it. So it's a proud moment. Every time I share a picture of her, it's a proud moment. वो proudness कूट के निकलती है मेरे चेहरे से. Okay, so I want to know, this is the longish answer, but from your hotel management phase to your airlines wala phase and to YouTube, tell me what have you learned from each phase and how was that for you? How did you transition into the other phase? See, I've learned it somewhere, I don't remember when, but you need to step out of your house in order to learn something. Yes, you can learn by reading books, but you need to step out of your house. अगर आपको मेहनत करनी है, आप घर बैठे ओवरनाइट सक्सेस नहीं पाओगे. सो ये चीज़ थैंकफुली मैं बहुत लेजी था, बट ऊपर वाले ने बोला तो मैं तुझे बाहर भेजूंगा. होटल मैनेजमेंट में ये सीखा कि आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना पड़ता है.
बिकॉज आप बहुत ऑड जॉब, छोटे छोटे काम करते हो एंड यू नोबडी इज देयर कि आप किसी को लुक डाउन करो, आप सबको सब लोग आपको लुक डाउन करते हैं। तो उससे आपका एक चीज़ हो जाती है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कितना भी छोटा काम हो करने के लिए, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम। तो उसमें बहुत कुछ सीखा, बहुत गालियाँ खाई। वो गाली खाने वाला भी एक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है। अब वो भले ही उस टाइम तक नहीं खाई थी, तो एक चीज़ बुरी भी लगती थी कि कोई बड़ा शेफ़ या मैनेजर मुझे गाली दे रहा है, या फिर कोई बहुत बड़ा आदमी मुझे 500 रुपये की टिप दे रहा है। वो टाइम तो 500 रुपये मुझे बहुत अच्छा लगता था। एयरलाइंस में ये सीखा, एयरलाइंस में मैंने अलग अलग कंट्री के लोग कैसे होते हैं वो सीखे। बिकॉज इंटरनेशनल एयरलाइंस में अलग अलग कंट्री के लोग होते हैं, तो क्रू फ्लाई करते हैं। सो जैसे कि मेरे घर में बीइंग अ पंजाबी फैमिली, स्पेशली माय मॉम पुट लॉट ऑफ शुगर इन माय टी, लॉट ऑफ शुगर। और मैं उसी तरह बड़ा हुआ था कि मैं बहुत शक्कर खाता था, ऑल्दो आई वाज वेरी थिन दैट टाइम। सो जब मैं बाहर गया, रिमेंबर मेकिंग ग्रीन टी, और मैं ग्रीन टी में 4 चम्मच शक्कर डाल रहा हूँ। तो एक कोई लड़की थी, व्हाट आर यू डूइंग? आई सेड पुट शुगर, यू डोंट पुट शुगर इन ग्रीन टी। बोला रियली, हाउ डू यू ड्रिंक इट देन? यू ड्रिंक इट विदाउट शुगर। बोला ऐसा भी होता है? एंड देन मैंने वो ब्लैक कॉफ़ी में शक्कर नहीं डालते, ब्लैक कॉफ़ी पीना सीखा। कोई कंट्री में जाके कैसे रहते हैं, कितना पैसा खर्चा होता है, जुगाड़ भाई मुंबई का होके जुगाड़ तो वो तो डीएनए में है। तो मैं वो उनसे सीख के जुगाड़ करता था, उनको भी सिखाता था। लाइक मॉलडीव्स में जहाँ पर इतना महंगा खाना मिलता है, मैं स्टाफ कैफेटेरिया में जाके $4 में खाना खाता था। तो वो होटल मैनेजमेंट का जुगाड़ था ना, वो होटल मैनेजमेंट ने सिखाया कि हमको कोई बड़ा छोटा नहीं होता। एंड इतने कैप्टन से मिलके बात करके, वो कैप्टन अपना लाइफ स्टोरी शेयर करते थे। कोई पैसेंजर मिल गया, वो अपना लाइफ स्टोरी शेयर करेगा। सो आई गॉट अ चांस। अभी तो लोग आप यूट्यूब वीडियो में देखते हो मेरी या किसी और की स्टोरी, हमें तो टाइम लाइव एक्सपीरियंस लोग मिलते थे जो मुझे ज़रूरत थी। वो टाइम आई वाज जस्ट 20, मुझे ज़रूरत था वो लाइफ लेसन्स लेना। तो बहुत कोई एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर मिल गया, वो बॉडी की टिप दे रहा है। कोई कपल मिल गया, वो टिप दे रहा है। कोई एकदम वॉन्डरर है जो पैसा कमाता है, उड़ाता है। वो हम लोग तो देसी माइंडसेट यार, मिडिल क्लास मेंटालिटी, कमाओ बचाओ और फिर घर ले लो, सोना ले लो ना। तुम लोग 6 महीना काम करके 3 महीना इंजॉय कैसे करते हो? बोलते लाइफ इज स्मॉल मैन। वो टाइम हजम नहीं होती थी, बट एज यू एज आपको समझ में आता है क्या बोल रहे हैं। सो लोग आपको सिखाते हैं। एंड देन कम यूट्यूब में मैंने दुनियादारी सीखी। तो दुनियादारी मैंने अपने जॉब पे नहीं सीखी थी, बिकॉज आपको थोड़ा बहुत समझदारी से काम लेना पड़ता है। थोड़े फेमस हो जाते हो तो आप गलत चीज़ नहीं बोल सकते, थोड़ा पॉलिटिकल होना पड़ता है, थोड़ा पीआर करना पड़ता है। आप सिर्फ अपने काम से नहीं जाने जाते, आप कितने लोग को जानते हो उससे जाने जाते हो। तो ये चीज़ दुनियादारी मैंने यूट्यूब से सीखी कि काम में ऐसा होता, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग फॉर समबडी, यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ। So you need to look after yourself also. From airlines to YouTube, how did you come into YouTube, or like how did you get the idea कि अच्छा YouTube करना चाहिए? Long story short, it's a very long story. Long story short, I came in Mumbai to start business. पहले से अपन भले ही शर्मा हो, बट सिंधी दिमाग है कि पैसा इधर तो डालना है भाई, थोड़ा थोड़ा पैसा आना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स घर में मॉम ऐसी है मेरी। डैड तो एकदम इंजॉय वाले हैं, अरे कमाने का, खाने का, सो जाने का। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं मॉम पे गया हूँ, कमाओ सेव करो तभी नींद आएगी भाई, वरना नींद नहीं आएगी बिना पैसे के। सो आई केम इन मुंबई। मैंने बोला देखो भाई, अभी मैं mid-20s में हूँ, 24-25 हूँ, 2-3 ब्रेकअप हो चुके हैं, शादी वादी भी करनी है आगे जाके। बिकॉज मेरे कुछ दोस्तों की वो टाइम सीरियस 6 साल से डेट करते, शादी करना शुरू करते। मतलब पहले शादी करना शुरू कर तो अपने को भी करना पड़ेगी उसके लिए। बट मैंने बोला मैं आई डोंट थिंक आई कैन फाइंड समवन ओवर देयर। मैं थोड़ा वो टाइम डिप्रेशन से गुजर रहा था। आई केम टू मुंबई टू इन्वेस्ट इन समथिंग एंड स्टार्ट अ बिजनेस। मतलब सेव करो चले जाऊँगा। वो टाइम कीड़ा काटा था थोड़ा एक्टिंग करने का। मेरे डैड बहुत खिलाफ थे वो सब चीज़ के, ये सब तो इंडस्ट्री में नहीं जाएगा, बिकॉज ही हैज सीन अप फ्रंट कि इट्स नॉट अ गुड इंडस्ट्री। अब मेरा बेटा बोलते ना, हर बाप को पता होता है बेटी की औकात क्या होती है, डैड को पता है इसकी औकात नहीं, कुछ नहीं करेगा। बट ही वाज राइट। 6 महीने का टाइम था, स्ट्रगल किया। आई वांटेड टू गो बैक, फादर पास्ड अवे। आई वाज लाइक यू नो व्हाट, आई विल स्टे। एक एक्सक्यूज मिल गया रुकने का। बहुत सारे काम करते करते, इन्वेस्टमेंट करते करते एक यूट्यूब दिख गया। वो तो मैं कर ही रहा था, वो तो एज आई टोल्ड यू वीडियोस तो मैं बनाता ही था, नॉट एवरी डे, बट कुछ ना कुछ शूट कर लिया। गाड़ी से बाहर निकला, सेल्फी वीडियो ले लिया। स्विफ्ट का टायर फट गया, वो बताया। बम्पर निकल गया, वो बताया। लोनावला गया, ये बताया, खुद के लिए। आप ये YouTube पर डालते थे या फिर नहीं डालता? ओनली फॉर योर ओन? ओनली फॉर माय ओन। ओके, वो सब है मेरे पास शुरू से। जब से मुझे फर्स्ट इतना डेटा कहाँ रख रहे हो यार? है मेरे पास सब। मैंने हार्ड डिस्क पे बहुत इन्वेस्ट किया है। इतने सारे हार्ड डिस्क है मेरे पास, पूरे भरे हुए हैं। So you have all the big cars, you have a great house, you have a great married life. Do you still have a definition of success? What does it mean to you? Success is like, you get up in the morning, you feel fresh, and then
as the day goes by, you feel weak, you feel tired. That's success for you. Success doesn't stay. Success is a journey. So, someone once told me that there are three things. You become successful, then you put yourself under stress, and then you find a solution to overpower that stress, and then you become successful again. Yeah. This is three S, S3 or whatever you want to call it. So I find myself every morning, I look at my daughter, I play with her, I find myself successful. There was a time when I used to ride my bike, I used to find myself successful. There was a time when I got married to my girlfriend, my wife now, I find myself successful. There was a day when I gave my mother my check, इधर कमाने के बाद, I found myself successful. Success it changes every time. Probably जब मेरी बेटी चलना शुरू करेगी, I'll find myself successful. Yeah. Probably अभी मुझे गाड़ी बाइक सक्सेसफुल फील नहीं कराती. अभी मुझे मेरी बीवी का कभी झगड़ा होता है और जब उसके बाद हमारे पैचअप होता है, वो मुझे सक्सेस फील कराता है कि आई एम सक्सेसफुल इनफ कि आज मेरी बीवी और मैं आके बात करते हैं एंड वी नेवर टेक अ फाइट टू बेड. मेरा एक रूल है जो मेरा बहुत पहले से है कि नेवर टेक योर स्ट्रेस टू द बेड अनलेस इट्स फिजिकल. अगर जब कोई बीमारी है तो डिफरेंट स्टोरी, बट काम का और पैसे का कभी भी स्ट्रेस बेड पे लेके नहीं जाते. वो आदमी सक्सेसफुल नहीं, वो दिखता सक्सेसफुल है तो होता नहीं. सक्सेसफुल इंसान वही है जो अच्छे से सोए और अच्छे से उठे. So do you decide how much of your personal life you want to put on YouTube? Yes. I decide. After And having is a there baby. parts of it that we don't know because we think we know everything? Yes, you know everything. Everyone knows everything, but I Yeah. don't show that. There was a serious anger issue before. Understand, like 17-18 साल की उम्र बाहर चले गया, मुंबई क्या होता है नहीं पता, आया डैड गुजर गए, तो there was एक गुस्सा एंड पंजाबी फैमिली है, हम लोग के हिस्ट्री है. आई थिंक मैं उस गुस्से से बाहर निकल रहा हूँ. Why I started riding. When you ride, there's a meditation happening. When you do Om, same when you ride a bike, there's a meditation happening. Yeah. You think about your life. There's 1000 kilometers. क्या करोगे आप? 15 मिनट का ब्लॉग बनना है, लेकिन आप 12 घंटे चला रहे हो. अब सोचते हो अपनी लाइफ के बारे में. तो यस, काफ़ी कुछ चेंज होता है उस चीज़ से. तो गुस्से को वो ओवर पावर जो किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. How important is it, and I want you to give some tips to some creators also, how important is it to be entrepreneurs as well as content creators? So because when I see your videos, I think you're just not creating content, you're also creating a whole business. ज़रूरी है. Yeah. फ्यूचर किसने देखा है, राइट? अभी ऐसी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर ली है, कल को ऐसी लाइफस्टाइल नहीं अडॉप्ट कर पाया तो बुरा लगेगा. हर इंसान का टाइम आता है, मेरा भी टाइम आएगा, बट बुरा लगेगा. तो इसके लिए मैंने घर ले लिया. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेरे पास एक छत तो हमेशा रहेगी. हाँ. एक गाड़ी ले ली, गाड़ी तो चलाता रहूँगा. बाइक स्कूटर, आपने देखा मैं अभी भी स्कूटर में आया, मेरा वो लाइफ कभी नहीं जाएगी. हाँ. कुछ लोगों को लगता है कि अरे तो ये हो गया, नहीं भाई, आई विल ऑलवेज राइड अ स्कूटर, कितना भी कुछ ले लो. सो टिप्स फॉर ऑल द न्यू क्रिएटर्स कि भाई आपके पास है ना, आप एक टाइम है, आप वो टाइम ऐसा बोलो कि बस ये, अगर मान लो आपको 2 साल, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 2 साल देना, मैं 2 साल ना जम के मेहनत करूँगा, बट वो 2 साल को 5 साल मत कर देना, फिर आपके मेंटल हेल्थ पे आएगा. 2 साल जम के, जैसे आप जिम जाते हो, आप जिम डिसाइड करते हो कि यार मैं 2 बजे जाऊँगा और मैं 2 से 4 मेहनत करूँगा. आप ये नहीं बोलते मैं पूरा दिन जिम में रहूँगा, कल की कल बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता. तो उस हिसाब से आप अपने आप को टाइम दो कि मैं इतना स्ट्रगल, बिकॉज अगर आप 2 साल देने के बाद भी आप वहीं हो, आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, और वो ईगो को बोलना पड़ता है आपको. एंड जब थोड़ा पैसा आने लगे ना, तो मुझे पता है अभी जो लाइफ ऐसी हो गई है कि एवरीथिंग इज शो ऑफ. आपको अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं, जूते पहनने पड़ते हैं, थोड़ा ग्लैमर दिखाना पड़ता है. व्हेन यू ओपन योर एनी सोशल मीडिया ऐप, एवरीथिंग इज सो ग्लिटरी, और लोग बहुत जज करते हैं. आई अंडरस्टैंड क्रिएटर्स, आई अंडरस्टैंड, आई एम क्रिएटर, मुझे लोग आज तक जज करते हैं, बट थोड़ा आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, उस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप वही सोचते रहोगे कि लोग क्या सोचते हैं, यू विल नेवर कम आउट ऑफ द बॉक्स. द होल रीजन यू स्टार्टेड मेकिंग डिजिटल कॉन्टेंट बिकॉज यू वांट टू गेट आउट ऑफ द बॉक्स, राइट? अगर आप यही सोचोगे लोग क्या सोचते हैं, कभी बाहर नहीं निकल पाओगे. एक्सप्लोर करो, और जब पैसा आए ना, तो एक सर्टन, उसमें भी 10 रुपये आ रहे हैं तो 20 रुपये कहीं और सेव होंगे या इन्वेस्ट. आजकल तो सब इन्वेस्ट, जेन जी इज द बेस्ट, आई थिंक. वो इन्वेस्ट करने में बिलीव करती है, स्टॉक, क्रिप्टो, इधर उधर, तो वो करो बिफोर बाइंग योर एक्सपेंसिव लग्जरी कार, सो दैट यू कैन पोस्ट दिस इज सक्सेस. एज आई सेड, सक्सेस चेंजेस एवरी डे. थोड़ा आप इन्वेस्ट करो, बिकॉज कल को अगर मान लो कि कुछ बंद हो गया है, नहीं चलता, तो आपके पास एक मोड ऑफ इनकम है. आपका वो ईगो हर्ट नहीं होगा, आपके वो दूर के रिश्तेदार खुश नहीं होंगे कि देखा बड़ा उड़ रहा था गिर गया, वो नहीं हो पाएंगे. Have you ever googled yourself? Yes.
जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आई गूगल माई सेल्फ. Have you seen the most Googled questions about you? Oh no, I think पहले आता था is Shanice her. Yeah, I have some most Googled questions I'm going to ask you. Okay, so most Googled questions with Nikhil. तो मुझे How rich is Nikhil? Money wise? Yeah, Money wise, I find myself very. rich. No, I'm still struggling. I would say. No, come on, you're just being. No. I'm being very honest. See, Yeah. पैसा क्या होता है ना? रिच आप दूसरों के लिए होते हो, आप खुद के लिए रिच नहीं होते. अगर आप खुद के लिए रिच हो ना, तो आप मेरे हिसाब से आप एक फेलियर हो. बिकॉज इंसान की ग्रीड कभी रुकती नहीं है. KGF में क्या बोला था रॉकी भाई ने? ग्रीड इज गुड, ग्रीड इज प्रोग्रेसिव. सो वो ग्रीड रहती है. जैसे कि आज मैं अगर कुछ बाइक चलाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, तो कुछ टाइम के लिए एंजॉय करूँ. यार और बड़ी गाड़ी लेनी है, घर लेता हूँ यार, और एक घर लेना है, एक दो इंटरनेशनल ट्रिप मारा यार, यहाँ पर भी जाना है, यहाँ, तो वो बढ़ता रहता है. हाँ. सो आप उस फेज में रहते हो. आपको नहीं लगेगा आप रिच हो या पुअर हो, दूसरों को लगता है. बट मैं हमेशा अपने से, रिच क्या है? रिच तो यार वो जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ कमाते हैं वो मेरे हिसाब से रिच है. तो प्रॉब्लम उनके लिए ऐसा है कि यार ट्रिलियनर बनना है, और पैसा कमाना है, तो वो चीज़ सेट होती रहती है. मेरे हिसाब से आई थिंक आई एम डूइंग गुड, बिकॉज मेरे प्लेट में खाना है, मेरे सर के ऊपर छत है और AC डाल के सोता हूँ. तो मेरे हिसाब से अगर ये मेरे हिसाब से रिचनेस है. बाकी कुछ भी आता है वो एक्स्ट्रा होता है. सो आई एम डूइंग गुड बट आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग इन माय लाइफ. Is Mumbai का निखिल Canadian? Oh no, and I never will be. Okay, who is that girl in Nikhil's videos? What girl? You tell us which girl are people looking for? I don't know. I think probably they're talking about Shanice. Yeah. Because earlier I used to, हाँ ये वो Shanice के बारे में ही है. So पहले मैं Shanice को जब मैंने all of a sudden दिखाया था कि all of a sudden बाली में दिखाया था कि कौन लड़की अचानक आ गई. So बहुत लोग पूछते थे कि who is she exactly? We understand her name is Shanice. She's your friend, but who is she? Probably वही. Okay, where are Nikhil's sunglasses from? I changed my sunglasses. So now I think the blue and green reflector जो है ना, that's the most famous one. So मैंने earlier days पे there's a American blogger called Casey Neistat. He used to wear that Ray-Ban Wayfarer वाला folding वाला. वो मजनू भाई वाला? नहीं मजनू भाई नहीं, वो फोल्ड होता है सब. अच्छा. बंद होता है. मजनू भाई वाला मैग्नेटिक है. वो नहीं. तो वो मुझे चाहिए था, तो मैंने लिया था और वो कहीं नहीं मिल रहा था. फॉर्चुनेटली मुझे मिल गया था. आई वाज वेयरिंग दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. नाउ आई चेंज, नाउ आई बिकम, बिकॉज़ ऑफ कैसा है फ्रेम वाइज चेंज करना पड़ता है. तो आई वेयर फ्रॉम Eyewear Labs, Ray-Ban या कोई ऐसे ही जेनेरिक वाला वो भी पहन लेता हूँ. बट जेनेरिक इज नॉट गुड फॉर योर आईज. सो आई कीप ऑन चेंजिंग. ओके, अभी मेरा रिसेंटली फेवरेट एक Ray-Ban का ग्लासेस है जिसमें कैमरा लगे हुए हैं. बहुत इंटरेस्टिंग है वो. I saw it in the vlog, Canada vlog. I don't use it much because I don't want everyone to know there's a camera in. कभी-कभी काम आ जाता है. Okay, last question. This is not Google, this is my question. Did Nikhil enjoy this interview? I enjoyed it so much. The thing is that ये सब इंटरव्यू की वजह से हम कुछ ऐसी बात बोल सकते हैं जो कि शायद हम अपने चैनल पे नहीं बोल पाते. एंड अच्छा लोगों को भी अच्छा लगता है. I enjoyed a lot. Thank you so much for coming on Uncut. Can you please tell everybody to subscribe to Uncut? Guys, if you have watched this video till here, आपको पता है क्या करना है. आपको 3 चीज़ करनी है. एक तो आप लाइक कर दोगे, कमेंट करो कि आपको अच्छा लगा बुरा लगा. आप कुछ सवाल रहेंगे आप पूछ सकते हो. प्रॉब्लम अगर फ्यूचर में कोई फिर मौका मिला तो अनकट कर फिर इंटरव्यू दे देंगे. और सब्सक्राइब करो बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर इन्होंने बहुत अच्छे इंटरव्यू लिए हैं और बहुत अच्छे इंटरव्यू लेने वाले हैं. बिकॉज अगर इसको सक्सेसफुल बनाओगे और भी बहुत सारे क्रिएटर आएंगे. और कौन से क्रिएटर को इंटरव्यू करना है वो भी लिख दो. Correct. He knows how to do it. So with that, I'm wrapping this week's episode of Socialize. मेरा नाम है सानिया. I will see you next Thursday at 5 p.m.